Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Gaurang Dhawanlal. And with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ गौरव धवनलाल। Thank you, Subodh, and Ashutosh, welcome to the program. Thank you. A quick look at the headlines. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister Narendra Modi praises advancements in the country's space sector, says it is strengthening the foundation of Viksit Bharat. Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw to participate in World Economic Forum 2025 beginning tomorrow at Davos in Switzerland. And domestic markets to focus on inflation data in India, China GDP and US policies under Donald Trump for cues next week. आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे विकास की तारीफ की। कहा कि यह विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में कल शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा भारत की मुद्रास्फीति और चीन की जीडीपी के आंकड़ों और डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिकी नीतियों पर। Market Mantra, Mantra, Market Mantra. We begin with our headline story. Prime Minister Narendra Modi has said that the country is setting new benchmarks in space technology, with visionary scientists and innovators providing solutions to future challenges. Addressing the nation on the 118th episode of his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi commended the nation's recent achievements in the space sector. ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने विजनरी हैं। हमारा देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं भारत के वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स और युवा उद्यमियों को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। Lauding the Bengaluru-based Indian space tech startup Pixel for successfully launching the country's first private satellite constellation, Firefly, the Prime Minister called it a significant step towards self-reliance. The Prime Minister also applauded the space docking of satellites, saying that this technology is important for sending space supplies into space stations and crew missions in space. He said India has become the fourth country to achieve this success. Prime Minister Modi extended his greetings in advance for the 75th anniversary of Republic Day. He said this year's celebration is particularly special as this year marks 75 years of the Constitution coming into force. He also highlighted the importance of National Voters' Day, which will be celebrated on the 25th of January. This day is important because on this day, the Election Commission of India was established. On the ongoing Mahakumbh at Prayagraj in Uttar Pradesh, the Prime Minister said, this is an extraordinary confluence of equality and harmony. On the participation of youth in the grand event, Mr. Modi said, when the young generation connects
with its civilization with pride, its roots become stronger. On the recent celebration of the first anniversary of the Pran Pratishtha Parv of Ram Lalla, Mr. Modi stressed that efforts must be taken to preserve the country's heritage and take inspiration from that while working on the path of development. On the completion of 9 years of Startup India, the Prime Minister said the country's startup culture is not limited to big cities, and more than half of the startups are from Tier 2 and Tier 3 cities. He said Ambala, Hisar, Kangra, Chengalpattu, Bilaspur, Gwalior and Washim are becoming centres of startups. Mr. Modi also remembered the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose and said the country will celebrate the 23rd of January as Parakram Divas on Netaji's birth anniversary. आइए अब कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। इंदौर से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, मार्केट मंदिर की पूरी टीम को इंदौर से अनिल कौटाले का प्यार भरा नमस्कार। सर, हमारा सवाल ये है कि जैसे किसी को इन्वेस्ट करना है तो सोना चांदी खरीदना अच्छा रहता है या मकान खरीदना? और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाले हैं तो जिनके पास 10 या 15 लाख रुपए ही ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड इस समय सबसे अच्छा है जो उनको 7-8 हजार रुपए तक का ब्याज दे जाए? जी देखिए, आपका पहला सवाल सोना चांदिया मकान, मेरा ख्याल डायरेक्टली इन एसेट क्लासेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी ज़रूरी है इसका आकलन करना कि आपका ये इन्वेस्टमेंट मकान की, जैसे आपने बात करी कि आप खुद रहने के लिए मकान की बात करें या एक निवेश के तौर पर उसको देख रहे हैं, तो ये कुछ अहम सवाल है जिनको देखना होगा। बहरहाल मेरा ये मानना है कि सोना चांदी मकान ये तीनों ही मेरे लिए पर्सनल, मेरे निजी राय में आप इनको ज़्यादा कंजम्पशन के तौर पर देखिए, अपनी ज़रूरतों के लिए सोना चांदी को आप गहनों के तौर पर देखिए जो कि आम तौर पर हिंदुस्तानी घरों में इस्तेमाल होता है। मकान बनाए अपने रहने के लिए। निवेश में लंबे समय में देखा गया है कि शायद जब सारे मकान को ओनरशिप के खर्चे आप जब सारे जोड़ते हैं तो शायद बहुत एक वायबल या एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी शायद नहीं बन पाती है। वहीं आप जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटीज एंड डेट्स या उनका कॉम्बिनेशन, मेरे लिहाज में प्योर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा आपका सवाल 10 से 15 लाख रुपए की जो रकम है उसको रेगुलर इनकम के लिए, देखिए एक दो प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखें कि जब भी आप रेगुलर इनकम की बात करते हैं अपनी पूंजी में से, तो आप इंश्योर करिए कि आपका जो सालाना विड्रॉल है इस पैसे में से आप कितना प्रतिशत निकाल कर आप एक इनकम के तौर पर उसको कंज्यूम करेंगे। तो सालाना तौर पर ये अपना विड्रॉल रेट 5 से 6% से ज़्यादा ना रखें, एटलीस्ट शुरुआती सालों में। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विड्रॉल रेट इससे ज़्यादा होगा तो आप बहुत जल्दी अपनी कैपिटल को कंज्यूम कर लेंगे और शायद रिटायरमेंट के लंबे समय बाद के सालों के लिए आपके पास कैपिटल की कमी पड़े। तो 5 से 6% का अपना विड्रॉल रेट रखें। इसका पोर्टफोलियो आप मानिए कि 35-40% पैसा अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और बचा हुआ पैसा आप थोड़े सेफ्टी के साथ सुरक्षित हाई क्वालिटी डेट इन्वेस्टमेंट्स में, एफडीज या डेट म्यूचुअल फंड्स या सीनियर सिटीजन SCSS, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है, इन सब के माध्यम से अपना डेट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मेरे लिहाज में 35 से 40% इक्विटी, बचा हुआ डेट, और इसमें से ये पोर्टफोलियो बनाकर हर साल आप इसमें से 5 से 6% पैसा निकाल कर उसको इनकम के तौर पर यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर देखें, एक रेडीमेड सिंपल सॉल्यूशन आपको इक्विटी सेविंग्स या बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स हैं जिनमें आपको कुछ इस टाइप की एसेट एलोकेशन बिना मेहनत के मिल जाती है। जी, अगले कॉलर हैं मेरठ से विपिन। विपिन, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सबको। मैं विपिन अरोरा बोल रहा हूँ मेरठ से। जी, ये L&T इंफ्रा फाइनेंस कंपनी है। मैंने डिबेंचर्स लिए थे, बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो थे, फरवरी 11 में। विपिन जी, आज का कार्यक्रम हमारा म्यूचुअल फंड्स पर है। अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो ये बॉन्ड ही है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, ये भी डिबेंचर सर्टिफिकेट ही है एक तरह से। तो इसमें जैसे 2011 में लिए थे तो 10 साल की मैच्योरिटी के थे, पर मैं मैच्योर हुए तो वो उसको कहीं मेरे को ना तो मैसेज आया कि क्या करना है, तो अभी वो फंसे हुए हैं पैसे मेरे जो है 20,000।
देखिए, इनका जो भी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट होंगे इनके, या आपके पास इनका इन्वेस्टर सर्विसेज का नंबर होगा, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको इन्वेस्टर सर्विसेज का नंबर मिलेगा, आप उस पर बात करें। देखिए, मोटा मोटा मैं आपको ये कह सकता हूँ, पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। ये जितने भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेफ रहते हैं, आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं। आपको उनसे संपर्क कर अपने जो भी आपके दस्तावेज वो मांगेंगे वो आपको उनको देने होंगे, कैंसिल्ड चेक की कॉपी देनी होगी, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप उनके इन्वेस्टर सर्विसेज से संपर्क करिए और जो भी कार्रवाई वो आपको बताएंगे क्या करनी है, जिससे आपका पैसा आपको मिल पाए। We move on to Noida, from where we have Pankaj. Pankaj, please ask your question. Welcome. थैंक यू मैडम, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, हमारा सवाल है कि जो कोई फर्स्ट टाइम अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहे तो कहाँ से शुरुआत करे, ये जानकारी लेनी मैडम। इक्विटी से कहाँ से मतलब जानना मैडम। जी, देखिए, आजकल बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उनका ये सवाल होता है कि कहाँ जाएं, कैसे शुरू करें। देखिए, आपके पास 2-3 माध्यम है म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत करने का। पहला तो ये कि आप जिस भी बैंक के थ्रू, क्योंकि आप अनफेमिलियर हैं, तो आप चाहेंगे कि कोई हैंड होल्डिंग मिले, कोई आपकी सहायता करे, कोई आपकी मदद करे निवेश करने में, फॉर्म फिलिंग में, पहला कदम उठाने में। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जिस भी बैंक के थ्रू अपना जहाँ पे भी आपका खाता है, जिस भी बैंक के साथ आप रिलेशनशिप रखते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बस उनके थ्रू इन्वेस्ट करने में ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना दे दी जाए। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत लीजिए जिसमें म्यूचुअल निवेश के साथ इंश्योरेंस मिक्स हो। तो आप म्यूचुअल फंड में उनके थ्रू इन्वेस्ट करिए तो आपको स्टार्ट करने में सहायता हो सकती है। दूसरा तरीका है, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम है इन्वेस्ट करने के, काफ़ी सारे निवेश के ऐप्स हैं और जो सभी अच्छे तरीके से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, तो आप उनका सहारा भी ले सकते हैं। मेरी राय होगी, एज अ स्टार्टिंग इन्वेस्टर आप या तो 1 या 2 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जैसे कि ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड है, आप उससे अपना एक छोटे अमाउंट का SIP बनाइए, उससे शुरुआत करिए और आपको थोड़ी फेमिलियरिटी आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप आगे अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ निवेश कर सकते हैं। और ये निवेश आप ICICI प्रूडेंशियल की वेबसाइट, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी आप शुरू कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं पुणे से आलोक। आलोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। आलोक, आप हमारे साथ हैं? हेलो जी आलोक, अपना सवाल पूछें। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा एक सवाल ये है कि मेरे पास में अभी कुछ बैलेंस है, करीब 4-5 लाख रुपए है, तो उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 4-5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुछ बेस्ट फंड बता दीजिए, कुछ 4-5 फंड बता दीजिए अच्छे, जिसमें मैं अपना 50-50 हजार करके ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ फंड बता दीजिए, बढ़िया फंड, अच्छे वाले फंड आपके हिसाब से, कि मैं उसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल करीब के लिए। और एक सवाल ये है कि जो आपके रेगुलर कॉलर है मिस्टर NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर, तो उनका कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल मिल सकता है, या फिर अगर सुन रहे होंगे तो वो अपना कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर सके, तो मेल ID हो चाहे कॉन्टेक्ट नंबर हो, तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, हम इसके बारे में तो बता दें कि हम अपने श्रोताओं के डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और हमारे पास वैसे भी सिर्फ हमारे पास नाम होते हैं उनके। और आशुतोष, जो इनके सवाल हैं निवेश के बारे में, उन पर बताएं। और उसके पहले तो ये बताएं कि 4-5 लाख रुपए को 4-5 साल के लिए लगाने के लिए क्या 4-5 फंड्स की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि 4-5 फंड्स की ऐसी कोई खास जरूरत है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अपने आप में 30 से 40 सिक्योरिटीज का पूरा पोर्टफोलियो है। तो आप अगर एक फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। हाँ, आपको 2 से 3 फंड, लेकिन इससे ज्यादा की मेरी समझ में जरूरत नहीं है। 4 से 5 साल मेरे हिसाब से एक मैं मीडियम टर्म होराइजन मानता हूं। मैं इसको बहुत लंबा समय भी नहीं मानता और बहुत छोटा भी नहीं मानता। तो मेरे हिसाब से आपको इस पैसे को थोड़ा इक्विटी और डेट में स्प्रेड करके लगाना चाहिए, और ये आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स से ये आपको स्प्रेड बिना कुछ मेहनत किए मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 फंड के नाम, ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट, मैंने अभी भी एक श्रोता को बताया, और कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड। आप इन दोनों फंड्स में ये 4-5 लाख रुपए को SIP के माध्यम से स्प्रेड करके लगाइए, और होपफुली ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
कितने समय पे स्प्रेड करें, इस पे ये देखिए कि ये 4-5 लाख रुपए आपकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। अगर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये रकम, तो आप अगले 6 महीने में एसआईपी के थ्रू इस पैसे को स्प्रेड कर दीजिए। लेकिन अगर ये पैसा आपका मानिए 1 साल की जितनी आपकी इनकम है, अगर उसका 25, 30 या 50% है, तो ये थोड़ा आपके लिए इस पैसे के मायने ज्यादा हैं, तो इसको कम से कम 1-1.5 साल पे स्प्रेड करके लगाइएगा। रिक्वेस्ट आशुतोष, अगर आप वो फंड्स के नाम जरा धीरे धीरे बोल दें ताकि हमारे श्रोता लिख पाए उनको। जी, तो मेरी रिकमेंडेशन है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये दोनों एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसका मतलब यह है कि आपका ये करीब 70 से 75% पैसा इक्विटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, बचा हुआ 25-30% पैसा आपका डेट में लगाते हैं। इन फंड्स का फायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं। बढ़ते बाजार में इनमें काबिलियत है कि इक्विटी क्योंकि डोमिनेंट है तो अच्छा आपको पार्टिसिपेशन देते हैं बुल मार्केट में, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो मार्केट से थोड़ा कम गिरते हैं, क्योंकि 30% डेट है, वो आपको मार्केट अगर जबरदस्त फॉल है तो उसमें थोड़ा आपको कम गिरावट महसूस होती है। और ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एडवांटेज होती है, क्योंकि इक्विटीज में सबसे बड़ा जो डर का विषय होता है वो ये होता है कि जब मार्केट गिरती है तो अगर आप घबरा कर लॉस बुक कर लेंगे तो वो आपका परमानेंट लॉस हो जाएगा। इक्विटी मार्केट बढ़ती घटती रहती है, जरूरी है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें और अगर आपके निवेश अच्छे हैं तो उन पे बने रहें। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ये हासिल करने में आपकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरा हुआ दिखता है और वो आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए या जिनका मीडियम टर्म होराइजन होता है उनके लिए ये फंड काफी बेहतरीन साबित होते हैं। राइट, थैंक यू। फ्रॉम दिल्ली वी हैव योगेश। योगेश, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी आशुतोष जी, नमस्कार आपको। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं, एक तो साइकोलॉजिकली है और एक आपका एक्चुअल है। जो एक्चुअल सवाल है वो ये है कि मेरा ही एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड एमर्जिंग ब्लू चिप फंड में पहले 2500 रुपए पे इन्होंने कैप लगाया था। उसके बाद इन्होंने उस कैप को ये बोल के लगाया था कि एयूएम भी बहुत हाई है और मार्केट भी बहुत हाई थी, बट अब वो कैप हटा करके, जबकि एयूएम बढ़ गया है अब ज्यादा, अभी भी वो कैप हटा के इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है बिल्कुल अब तो ये रिवर्स कैसे, इनका मतलब क्या लॉजिक था, समझ में नहीं आया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अभी लमसम किया था, बीच में गिरावट देख करके उसके बाद मार्केट और ज्यादा क्रैश हो गई, तो थोड़ा सा एक ये लगता है कि काश अब अभी पैसा होता तो और डालता। तो उस ट्रैप से कैसे बाहर आ जाए, साइकोलॉजिकल ट्रैप? जी, दोनों सवाल आपके अच्छे हैं। देखिए, पहला सवाल आपका मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है। देखिए, जब भी कोई फंड कंपनी अपने फंड पर गेट लगाती है या वो कहते हैं कि हम इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, देखिए 2-3 चीजें होती हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो हो रहा है। एक पर्टिकुलर ऐसा समय आता है जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली या प्रॉफिटेबली पैसा डिप्लॉय करने की के बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है फंड मैनेजर के पास। उन्हें लगता है कि अगर ये पैसा इस रफ्तार से फंड के अंदर आता रहा तो इसको हम डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे मार्केट में प्रॉफिटेबली, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फंड की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करेगा, तो वो टेम्पररीली पैसा लेना बंद कर देते हैं। और कभी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, मार्केट में गिरावट है और फंड मैनेजर को लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक जो बढ़िया दाम पर हैं, तो वो पोर्टफोलियो को और विस्तृत करने की उनके पास काबिलियत है इस वक्त, तो वो गेट्स हटा देते हैं। दूसरा ये भी है कि देखिए, जब मार्केट में एक फंड में कितना साइज वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इट इज ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि टोटल मार्केट साइज क्या है। अगर 3 साल पहले फंड मैनेजर को लग रहा था कि मार्केट उनका फंड काफी बड़ा हो गया है, तो 3 साल में मार्केट भी तो बढ़ी है, तो जब मार्केट बढ़ेगी तो उस इनफ्लो को एब्जॉर्ब करने की फंड की क्षमता भी बढ़ेगी। तो पहले एक टाइम पर 5,000 की 10,000 करोड़ की कंपनी भी बहुत बड़ी होती थी, लेकिन आज की डेट में 5-7 हजार करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप कंपनी मानी जाती है। तो क्योंकि बाजार का साइज भी ओवर द पीरियड बढ़ता है, तो इसलिए कि फंड की क्षमता इनफ्लोज एब्जॉर्ब करने की भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल कि मार्केट क्रैश और आपने पैसा लगाया फिर मार्केट और गिर गई, देखिए ये साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने का ही एक गोल्डन रूल है एसआईपी। जब आप बेसिकली अपने निवेश की शैली में से मार्केट के उतार चढ़ाव को बाहर कर देते हैं, तो वो हासिल करने में एसआईपी सहायक होता है। मेरा ये मानना है कि आपका कोर पोर्टफोलियो है वो एसआईपी के माध्यम से ही आप निवेश करें। हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स को होता है कि थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिकली हम इन्वेस्ट करें, थोड़ा प्रोएक्टिवली वो थोड़ा ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरा ये सुझाव होगा कि 80-90% अपना पैसा आप एसआईपी के माध्यम से बिना मार्केट के उतार चढ़ाव को देखे आप निवेश करें। 10-15% अपनी एलोकेशन आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग एंड सेलिंग के लिए रख सकते हैं कि जब मार्केट गिरेगी तब हम पैसा डालेंगे। उसमें भी आप कोई अपना रूल फॉलो करिए कि ये जो 10
प्रतिशत पैसा आपने मार्केट के बाहर रखा हुआ है अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए, कोई अपना रूल फ्रेम करिए कि मानिए कि जब मार्केट 10% गिरेगी मैं 10% पैसा निवेश कर दूंगा, मार्केट और 10% गिरेगी मैं और 10% लगा दूंगा। इस तरह से अगर आप अपना कोई रूल बेस्ड चलेंगे तो आप इस दुविधा से बाहर आ पाएंगे, अदरवाइज इस दुविधा से बाहर आने का और कोई उपाय नहीं है। जी, अगले कॉलर के पास जाने से पहले हम अगली स्टोरी पर नजर डालते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में कल शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्री वैष्णव देश के विकास मॉडल की जानकारी देंगे। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से प्रगति में पीछे रह गए वर्गों का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिन के विश्व आर्थिक मंच के दौरान समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश की परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा में दुनिया भर ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की आर्थिक नीति, डिजिटल संरचना तथा समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में समझने के लिए इच्छुक है। We now welcome Pritam from Delhi. Pritam, welcome. Please ask your question. नमस्कार। नमस्कार। सर ये पता करना चाह रहा था कि अगर हम इन्वेस्ट करें किसी भी फंड में तो ज्यादा अर्निंग्स कैसे, मतलब मैं स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ SIP के जरिए से। और दूसरा क्वेश्चन ये था, और जैसे कि ग्लोबल प्रीतम जी, सॉरी प्रीतम जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक तो जो आपके वहाँ रेडियो है उसको जरा, हाँ, रेडियो का वॉल्यूम 0 कर दीजिए। हाँ, और अब अपना पहला सवाल भी फिर से पूछिएगा प्लीज। मैंने पूछा था कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें SIP के जरिए से तो ज्यादा अर्निंग्स किस हाउस में किसके जरिए हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये था, अब ग्लोबल टेंशन कुछ कम होने के चांसेस लग रहे हैं, तो क्या गोल्ड के रेट कम हो सकते हैं या मार्केट को कुछ फर्क पड़ेगा इससे? जी, देखिए, पहला आपका सवाल SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहता है। जहां तक मैं समझ पाया आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। ज्यादा अर्निंग्स, देखिए ज्यादा अर्निंग्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपका फंड एक लंबे समय में, एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली मार्केट से ज्यादा 1.5-2% ज्यादा रिटर्न दे पाता है तो मेरे ख्याल आपको अपने आप को सफल निवेशक मानना चाहिए और अपने फंड की परफॉर्मेंस से खुश होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी हमने पहले बात करी थी, मेरी नंबर 1 चॉइस होती है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। जो 2 फंड के मैंने पहले नाम बताए थे आप उन्हें ही देख सकते हैं। ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड। आप इन 2 फंड्स को से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ निवेशक हैं जो चाहते हैं कि मैं 100% इक्विटी ही चाहता हूं, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग इन्वेस्टर के लिए एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो आप इन फंड्स में शुरुआत करें, SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और कम से कम अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 साल का समय दें, बिना ये जज किए कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तब शायद आपको कुछ अच्छा लाभ होगा। गोल्ड के बारे में दूसरा सवाल आपका गोल्ड, देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में डर का माहौल होता है, जब भी व्हेनेवर मार्केट्स आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ टर्मोइल, तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। जब इकोनॉमीज खराब परफॉर्म कर रही होती हैं, बहुत अनसर्टेनिटी या बहुत फियर का माहौल होता है, तब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं क्योंकि गोल्ड को एक सेफ एसेट के रूप में देखा जाता है। और वहीं जब मार्केट्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, जब लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी होती है या ज़्यादा ऑप्टिमिज्म होता है मार्केट में, तब ये देखा गया है कि लोग ज़्यादा हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं और उस वक्त गोल्ड की परफॉर्मेंस मॉडरेट हो जाती है क्योंकि गोल्ड में से विड्रॉल्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि विश्व में जो कुछ पॉलिटिकल तनाव हैं वो कम होंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ, गोल्ड का जैसा परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में रहा है उससे कुछ मॉडरेशन आ सकती है। जी, अगले कॉलर है शिमला से राकेश। राकेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, जो हम जो है ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र इस योजना का, जो म्यूचुअल फंड का फायदा उठा सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल उठा सकते हैं। हर आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है। इनफैक्ट छोटे निवेशक, आम निवेशकों के लिए ही उनको सोचकर ही म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट बनाई गई है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, आज उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की रीच बहुत विस्तृत हो गई है। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से निवेश के जो तरीके आ गए हैं, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप एक बड़े शहर में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं। तो आप शुरुआत करिए, छोटे से शुरुआत करिए, और आपको अगर वो लाभदायक लगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उसमें अपना निवेश बढ़ाइए। फ्रॉम वडोदरा वी वेलकम अनिल। अनिल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिएगा अनिल। मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है, तो मेरा वॉलेटिलिटी से बचने के लिए म्यूचुअल फंड में वो 10-15% गोल्ड में निवेश करना चाहता हूँ। तो ये गोल्ड फंड सही रहेगा या गोल्ड ETF सही रहेगा? देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड को एलोकेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल करिए। आपका पर्पस जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है। गोल्ड को एज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क्स ऑफ इक्विटी, उसी के पर्पस से पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। 10-15% मेरे ख्याल ठीक है। इससे ज़्यादा मैं परहेज रखता हूँ। तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF, देखिए, अगर आप नॉर्मली आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आपके पास एक शेयर ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट है, तो आप गोल्ड ETF ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टॉक्स में ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सिर्फ गोल्ड ETF खरीदने के लिए मेरा ख्याल आप उससे बचें। आप सिंपली एक गोल्ड फंड ले लीजिए, वो मेरा ख्याल बेहतरीन विकल्प होगा। बाकी अदरवाइज दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड के प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे जो रिटर्न होता है वो आपको मिलता है। We now take a market story. Domestic benchmark indices have been on edge throughout last week as worries over slowing Q3 earnings loom large. It will be interesting to see how the markets react to the union budget and global inflation data, which is expected in the next few weeks. Foreign fund outflows, US policies, and the administration of Donald Trump will also be keenly watched. On the macroeconomic front, the focus will be on the inflation rate for December ahead of the RBI policy meet in February. On the global front, all eyes will be on the US inflation numbers. Market will also keep an eye on China's GDP numbers for the December quarter. Inflation numbers from Europe and the UK will also be considered. In the last week, the Sensex and Nifty both declined by over 1%. Nifty IT stood out with its steepest weekly drop in nearly a year, plunging 6% amid sectoral weaknesses. This marked the second consecutive week of trading below the 200-day exponential moving average, EMA, signaling persistent bearish momentum. However, robust corporate earnings in certain sectors and a resilient mid-cap performance offered a silver lining. Among the week's top performers were Hindalco, NTPC, HDFC Life and Reliance Industries. On the flip side, HCL Tech, Infosys, Wipro and Mahindra emerged as top weekly losers. Last week's sectoral performance highlighted selective buying interest despite overall bearish sentiment, while IT and banking indices lost 2% each. Sectors like oil and gas, power, FMCG and metal gained around 1%, reflecting defensive positioning by investors in the coming week. Focus will remain on monitoring key support levels and global cues. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। Absolutely, Ashutosh, a great learning experience as always. Thank you so much for coming onto our program. And now, listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister Narendra Modi praises the advancements in the country's space sector, says it is strengthening the foundation of Viksit Bharat. Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav to participate in World Economic Forum 2025 beginning tomorrow at Davos in Switzerland. And domestic markets to focus on inflation data in India, China GDP and US policies under Donald Trump for cues for next week. And that's it for today. Namaskar. Market Mantra.